Hello, myself Satyam Tandon. I'm the Operations General Manager for Cura. At Cura, we are here for experiences, something which is new. As Cura means it's a new life experience, a ray of life. We are providing experiences with the new cocktails, the mocktails, the tote bags, the experiences from our food, the chef, the atmosphere, and the crazy party vibes what we are famous for. So basically, I'm from Lucknow. I am a hotelier. I've been 12 years of experience working for hospitality. I've been working with brands like Hyatt, ITC. I've been working for Sofitel Hotel and Resorts in Bahrain. My last property was the City Palace Jaipur, and I got an opportunity to work for Cura, which is again a lavish property, which is the new thing in the town. We have just arrived. It's been an year only, and we are already making benchmarks, which is above the sky, which is not the Lucknow. If you come here, you won't feel like you are in Lucknow. So we are setting a trend. We are not following trends. What we are making trends, and what we are specialized for is what you can see in our food, in the vibes, in the atmosphere, in the party, as I already told you. So we want to give this life a ray of life, a new rays towards the hospitality, towards the experience, towards the life, towards the people who are coming here with our food, with our journey, with our service, which will all include our place, and that is how Cura has been made. जैसे कि आपको पता है कि ये शहर है नवाबों का, कबाबों का, अदब का, और हम लोग भी यहाँ पर अदब से ही पेश आने चाह रहे हैं. इसीलिए Cura आपके लिए पेश कर रहा है सारी चीज़ें अवधेही स्टाइल में. स्पेशली हमारे पास इंटरनेशनल कुजीन्स भी हैं, और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं भी ग्लोबली ट्रैवल कर चुका हूं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी लास्ट प्रॉपर्टी थी सिटी पैलेस जयपुर. आई वाज हेडिंग द महाराजा ऑफ जयपुर at the city palace. There I had been serving like the US presidents. I've been working for many officials of India. I have done the BRICS summit, which I held at ITC Moria, which is all a mixed experience. But when it comes to Lucknow, it's a totally a different vibe. ये शहर है अपने आप में एक अनोखा शहर, और हम चाहते हैं इसको और अनोखा बनाना. जो कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने ड्रिंक से, अपने फूड से और अपनी वाइब से शेयर करना चाहते हैं. अभी देखा जाए तो सिर्फ 1 साल हुआ है इस रेस्टोरेंट को. बहुत ही छोटा सा एक नन्हा सा बच्चा है जो कि शहर में पल रहा है, बढ़ रहा है. लेकिन हम लोग ने ये एक पेड़ लगाया था आज से 1 साल पहले, जो अभी इतना बड़ा पेड़ हो चुका है, जो कि फल देने की कगार पे है. हमने बहुत सारे इवेंट्स कराए हैं. अगर आप हमारा लाइनअप चेक करेंगे, सो वी हैव ample of events which is been lined up in Lucknow. The top and the top, if I talk, I have done the launch of Don Julio, which held at Cura. We have done a like Lost Exit, which is again apparel luxury brand, which we have done at Cura. We have done a Mercedes Maybach launch, which has been done at Cura. And there are certain things which are again lined up, which are coming in the next few months. So keep watching and still waiting for Cura's new updates. तो जैसा मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी का सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट की जिसकी ज़रूरत है वो है जनता, क्योंकि जनता के बगैर कोई काम नहीं है बनता, इसलिए सबसे बड़ी है जनता. अब हम बनाने जा रहे हैं इटालियन डेजर्ट, जिसका नाम है तिरामिसू. लेडी फिंगर बिस्किट और मैस्कार्पोने क्रीम को यूज़ किया जाता है. लेडी फिंगर बिस्किट, कोको पाउडर, एडिबल फ्लावर, ये बेक हुई है. ये मूस है इसका तिरामिसू का. इसमें मैस्कार्पोने है, व्हिप क्रीम है, कलोआ है, कॉफ़ी है. तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. इसको इसमें इसलिए डिप करते हैं कि ताकि ये सॉफ्ट रहे, मुलायम रहे, और खाते समय थोड़ा सॉफ्टनेस, मलाईदार रहे. इसका इटालियन भाषा में नाम है, और समृद्ध मलाईदार स्वादिष्ट मिठाई है, जिसका अर्थ होता है कि मुझे उठाओ या मुझे खुश करो. अक्सर खास अवसरों पर परोसा जाता है. और लेडी फिंगर बिस्किट मेन इसका जो इंग्रेडिएंट है वो मेन लेडी फिंगर बिस्किट है, मैस्कार्पोने चीज़ है, कोको पाउडर है, और आपका कलवा लिक्योर है.
रेडी है तिरामिसू। जर्नी के बारे में तो अब घर से इतना ज़्यादा कुछ था नहीं कि हाँ, मतलब कि वैसे तो था, पापा आर्मी वाले थे, लेकिन जब निकला तो तब पापा नहीं रहे थे, शादी हो गई थी, सब कुछ हो गया था और बच्चे भी हो गए थे। तो तब निकला घर से, तो फिर नहीं पता था कि हाँ क्या करना है लाइफ में, नहीं पता था कि हाँ क्या करना है, और इतना नॉलेज भी नहीं था कि करना क्या है। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट से शुरू किया। एक्सपोर्ट में कुछ टाइम एक्सपोर्ट की नौकरी की, मतलब कि वही 1 आध साल। फिर किसी ने बताया कि यार होटल लाइन अच्छी है और आपको जाना चाहिए, होटल लाइन में चलो। फिर होटल लाइन शुरू किया, ट्रेनिंग से शुरू किया। सबसे पहला आउटलेट था मेरा सीपी में स्पिरिट रेस्टोरेंट। तो स्पिरिट से मैंने अपनी जर्नी शुरू की होटल की। मिडिल ईस्टर्न भरत स्पाइस, जिसमें 12 तरह के मसाले जाते हैं, जैसे कि आपका कोरिएंडर हो गया, क्यूमिन हो गया। सर गोचुजैंग एक कोरियाई मसालेदार चंकी लाल मिर्च का पेस्ट होता है जो कोरियाई व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाता है। गोचुजैंग चिकन में हम कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे सूप बना सकते हैं और सॉस बना सकते हैं, और मैरिनेट किसी चिकन को मैरिनेट कर सकते हैं। और इसमें गोचुजैंग सॉस पेस्ट जो है उसमें हम चिकन बना सकते हैं, वेज बना सकते हैं, टोफू बना सकते हैं। और इसमें 2 चीज़ें और आती हैं, एक सैमजंग सॉस होता है, एक डैंजंग सॉस होता है। सेम तीनों सॉस हैं, वो कोरियाई पेस्ट हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ। उसके बाद जीके में एक रेस्टोरेंट है सालोम करके, उसमें कम से कम 5 साल वहाँ जॉब किया। वहाँ से फिर छोड़ा। फिर उसके बाद देन गुड़गांव चला गया। गुड़गांव में एक रेस्टोरेंट था, इंटर ग्लोब करके एक कंपनी थी, उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था लांगूर करके, वाइन शॉप थी, वो वाइन कंपनी थी। तो छोटा सा रेस्टोरेंट था, तो वहाँ जॉब किया। फिर वहाँ से फिर मूव किया, स्विच किया वहाँ से। फिर आया मालचा मार्ग में एक रेस्टोरेंट था सेनेगन करके, तो सेनेगन में गया। मतलब कि वहाँ भी वही 1-1.5 साल सेनेगन में जॉब किया। बेसिकली वो भी इटालियन और यूरोपियन और बेकरी मिक्स था वो भी, मतलब कि इंडियन चाइनीज़ नहीं था, लेकिन 2 कुजिन थी उसमें, इटालियन और पिज़्ज़ा और पास्ता, ये सारी चीज़ें थी। तो फिर वहाँ से भी स्विच किया। तो फिर एक रेस्टोरेंट था खान मार्केट में, इल्यूमिनाटी कैफ़े करके। इल्यूमिनाटी मतलब होता है लाइटिंग का कुछ था उनका। तो वहाँ पे जॉब किया। फिर वहाँ से 1 आध साल वहाँ भी काम किया। फिर वहाँ से स्विच किया। तब मॉलिक्यूल आया, मतलब कि वही 2016 से 2020 तक मॉलिक्यूल में जॉब किया। तो मतलब कि लाइफ में बहुत डाउन फॉल देखा है, कभी उतार चढ़ाव काफ़ी बहुत देखे हैं। मतलब ये था कि हाँ, मतलब कि जो मेरे सीनियर्स थे और उनका काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे को, मतलब कि जहाँ भी गया तो उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को। तो जो भी सीनियर थे मेरे सर, उनका बहुत सपोर्ट रहा मेरे को। मतलब कि व्यवहार से भी मेरा मतलब कि नेचर ही ऐसा था कि हाँ, सबसे के सब घुल मिल जाता था और अपने सीनियर की सुनता था कि वो जो बोलते हैं, जो जैसा वो बोलते थे वैसा करता था। और उसके बाद फिर मॉलिक्यूल में कम से कम 4 साल करीब 2016 से 17, 18, 19, 20, 21 तक मैंने मॉलिक्यूल में किया। उसके बाद आइवरी दिल्ली में जॉब किया, मतलब कि वही 22 की फरवरी से और लास्ट 2024 जुलाई तक। उसके बाद देन क्योरा रेस्टोरेंट आया। क्योरा में भी अब 1 साल हो गया है, यहाँ पे एज ए हेड शेफ कर रहा हूँ मैं काम, और अच्छा लगा। मतलब कि इतने साल से दिल्ली में था, तो दिल्ली में एक अपना ऑरा बना हुआ था, एक कंफर्ट जोन था। तो उसके बाद उस कंफर्ट जोन से थोड़ा मैंने कहा चलो ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, थोड़ा दूसरी सिटी देखते हैं, दूसरी सिटी में क्या हो रहा, कैसे काम होता है, कैसे रहा जाता है। तो यहाँ भी अब 1 साल हो गए हैं। अब वक्त
मतलब कि ठीक है, अपना स्टाफ किचन से रिलेटेड स्टाफ हैं या सर्विस से हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। मतलब कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ किसी ने कोई गलत या कुछ ऐसा, मतलब कि सत्यम टंडन है, अपना भुवन चंद जोशी हैं, विराट है, आकाश है, और अपने किचन की पूरी टीम है, अपने शेफ हैं सीताराम और दिनेश है, अपना जो भी इंडियन तंदूर के स्टाफ हैं, चाइनीज़ के स्टाफ हैं, बहुत अच्छे स्टाफ है, चाहे वो सर्विस का हो चाहे और किचन का हो, सब लोग एकदम हेल्पफुल बंदे हैं, सब अच्छा है। फूड के बारे में देखा जाए तो फूड का क्या है कि मैं मतलब कि कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। मतलब कि कुकिंग से मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ, और मतलब कि अपने जो सीनियर थे मेरे, उन्होंने भी यही सिखाया कि भाई कभी भी किचन में मतलब कि खाली नहीं रहना चाहिए, एक शेफ को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहना चाहिए। स्पेशल डिश सर, जैसे अब मॉलिक्यूल में थे हम, तो मॉलिक्यूल में एक चाट हाईवे करके था, तो उसका वो बनाते थे हम लोग, तो उस पर बहुत अच्छी रिव्यू मिलते थे। और एक उसके बाद दूसरा यहाँ पे, जैसे हम यहाँ तिरामिसू स्टार्टिंग में बनाते थे, तो तिरामिसू की बहुत वाहवाही होती थी। अब धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि जब थोड़ा चीज़ें पुरानी हो जाती है तो लोग उतना वो नहीं करते हैं, अटैक नहीं होते उस चीज़ पे। अब धीरे धीरे वो चीज़ें फिर दूसरा देखते हैं कि उसी को थोड़ा नए तरीके से कैसे देना है, कैसे करना है, तो उस पर थोड़ा काम शुरू कर रहे हैं, उस पर थोड़ा वर्क कर रहे हैं कि कैसे इसको सही करें, ताकि लोग उस पर फिर दोबारा वही क्रेज़ आए तिरामिसू का, तो उसी पे लगे हुए देखते हैं। रेडी है सर चिकन वॉन्टन, एंजॉय कीजिए। हम तो कुछ नहीं है, मेन जो इतना मेहनत करते हैं, जो बैक ऑफ द हाउस होते हैं, या जो तुम्हारे काफ़ी सारे जो होते हैं, उनका मेन रोल उनका होता है। उनको पता होता है कि हाँ कैसे करना है ना, कैसे आर्टिस्ट को तैयार करना है, कैसे क्या करना है, तो सारे काम उनका होता है, हमारा तो खाली बोलना होता है। ये जो सारे कॉन्डिमेंट हैं, ये जो लास्ट में डाले मैंने, इसलिए डालते हैं कि जैसे ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गया, पीनट हो गया, ये क्रंच देता है खाने में। ये आपका कोरियन बॉल कई लोगों को अच्छी लगती है, वो बुलाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो अप्रिशिएट सर क्या होता है ना कि अप्रिशिएट अकेला मेरे को करने से, मैं तो हमेशा कहता हूँ सर अप्रिशिएट तो मुझे कर रहे हो, लेकिन इसके पीछे मेरी टीम का हाथ है ना, एक कॉमिज का हाथ है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है ना। हम तो भाई हम तो गाइड कर रहे हैं उन लोगों को कि जी तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा बनाना है। तो मेन हाथ जो नीचे की जो हमारे स्टाफ हैं उनका हाथ होता है।